آج ہم سیکھیں گے ہمارا خدا اور ہماری فیملی. ہمارا خدا اور ہماری فیملی. زندگی کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ ہم اپنی زندگی کو کس قدر اور کس لحاظ سے جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. کون سی ایسی بنیادیں ہیں جن کے اوپر ہم نے زندگی کو رکھا ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہماری زندگی میں کون سا خدا معتبر ہے اور کون سی باتیں معتبر ہے اور ہم جو ہے وہ کس لحاظ سے چل رہے ہیں. کیا اپنی خواہشوں کے مطابق یا ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. اور ایک بہترین شخص کی مثال ہم نے سنی تھی, تو وہ کون سا شخص تھا؟ ایک بہترین شخص کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں. ہاں جی, میرے خیال میں چند لوگوں کو پتا ہے کہ ایوب کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, ہم سیلفش ہو گئے ہیں. ہم کیا ہیں جی, خود غرض ہو گئے ہیں, سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا. ہم اپنے لیے خدا کو چن چکے ہیں اور اپنی زندگی میں خدا کو معتبر کر چکے ہیں, لیکن ہمیں دوسرے کسی سے غرض نہیں. چاہے وہ ہمارا بھائی ہے, چاہے ہماری بہن ہے, چاہے ہماری ماں ہے, چاہے ہمارا باپ ہے, ہم جو ہیں وہ اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے حضور جو ہے وہ بڑے بہتر طور پر جینا پسند کرتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رابطہ صرف خدا کے ساتھ درست ہو, مجھے دوسرے سے کنسرن نہیں ہے. لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری فیملی. اب یہاں پر ایوب کے بارے میں سیکھا تھا. بزرگ ایوب جو تھے وہ اوز کی سرزمین کے رہنے والے تھے اور اس میں چند باتیں تھی. کون کون سی باتیں جلدی سے کریں گے, پھر ہم فیملی کے اوپر چلیں گے. جی, کون کون سی باتیں تھی؟ اس میں تقریباً 4 باتیں تھی جو اپنی زندگی میں رکھتا ہے. کون کون سی؟ جلدی سے حوالہ نکالا ہوگا آپ نے. ہاں جی, پہلی کون سی تھی؟ وہ کامل شخص تھا. دوسری راست باز تھا. اور تیسری کون سی ہے؟ خدا سے ڈرتا. اور چوتھی کون سی؟ کہ وہ بدی سے دور رہتا ہے. اب یہ جو ہے یہ خدا کا بندہ اپنی زندگی کو بڑی بہتر طور پر خدا کے ساتھ جوڑے ہوئے, لیکن اس کے ساتھ فیملی بھی جڑی ہوئی ہے. اب اس کی زندگی میں دیکھیں خداوند خدا کثرت سے کام کر رہا ہے اور وہ خدا کے بغیر نہیں چلتا. اور جب وہ خدا کے بغیر نہیں چلتا تو پھر اس کو خدا نے برکتیں دی ہیں, اور برکتیں ساتھ ہی اس کو لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اب خداوند نے اس کی فیملی کو بڑھا دیا. اب خدا کے بندہ کی فیملی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, اور 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد کہلاتا ہے. اور جب کاملیت کا عدد ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نے اس کی فیملی پر جو ہے مکمل اور پرفیکٹ برکت دی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے 7 بیٹے ہیں. اور جس کے 7 ہوں, کسی کے پاس اگر ایک نہیں ہوتا تو وہ ایک کو بھی ترستا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری فیملی پوری نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ 7 بیٹے ہونا اور 7 کا عدد جو ہونا وہ ہے کاملیت کا عدد. اب یہاں پر کاملیت کے لحاظ سے اس کی اولاد کے اوپر کثرت سے برکت موجود ہے. لیکن برکت کیوں موجود ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کی فیملی پر, اس کے بچوں کے اوپر. اس میں بیوی بھی آئے گی, ابھی تو بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم بیوی کے اوپر بھی بات کریں گے اور شادی کے لحاظ سے بھی بات کریں گے, کیونکہ شادی جو ہے ہوتی ہے تو فیملی ہوتی ہے. ہاں جی, میں صرف آیت کے لحاظ سے چل رہا ہوں کہ یہاں پر آیات میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے ہوئے ہیں, اس کی فیملی پر برکت ہے. اور برکت کیوں ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی فیملی پر برکت کیوں ہے؟ ہاں جی جی, اس کی زندگی جو جس شخص کی فیملی ہے اس کی زندگی میں پہلے درجے پہ خدا ہے. وہ خدا سے دور نہیں ہوا, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی جی رہا ہے, اس کے احکامات کے مطابق زندگی جی رہا ہے, تبھی اس کے گھر میں اس کی فیملی پر برکت ہے. آج ہم سوچیں کہ ہم اپنی فیملی پر برکت چاہتے ہیں
हम बेटे जैसी बरकत चाहते हैं, हम औलाद जैसी बरकत चाहते हैं, हमारे घरों में हर चीज़ अफराद से रहे और मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक खुदा हमें बरकत दे, तो लेकिन इससे पहले हमें अपने किरदार पर नज़र करनी होगी। इससे पहले कि हम अपनी फैमिली के लिए बरकत चाहें, हम अपने किरदार पर नज़र करें, क्योंकि जब फैमिली दी गई है तो उसका रहनुमा कैसा होना चाहिए, उसको लीड कौन सा शख्स करने वाला हो, वो लीड करने वाला, वो जिंदगी लीड करने वाली हो जिसमें खुदा हो, जिसमें दुआ हो, जिसमें वो खुदा का बंदा खुदा से डरता हो, खुदा का बंदा रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करता हो, वो खुदा के लिए परफेक्शन में ज़िंदगी बसर करने की कोशिश में रहे, वो बदी से दूर रहे, क्योंकि वो एक कामिल नमूना है अपनी फैमिली के लिए। अगर जिस फैमिली में खुदा नहीं है, वो मैंने पहले भी बहुत मरतबा बताया है कि उस फैमिली में जो है वो मोहब्बत नहीं होती, उस फैमिली में बरकत नहीं होती, उस बच्चों में बरकत नहीं होगी। अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है तो उसकी ज़िंदगी में से एक कामिल नमूना जो है अपनी औलाद के लिए है। अगर वो खुद अमल नहीं करता या रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर नहीं करता या जिस गलत काम को वो खुद कर रहा है, तो वो खुद अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे सकेगा, वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लगा सकेगा। एक जो शख्स है या एक वालिद जो है वो अपने घर का रहनुमा है, तो अगर वो उसका भाई या उसका वालिद जो है वो शराब पीता है तो फिर वो अपने बच्चों के सामने पीता है, तो ये जान ले कि उसका बेटा और बेटी भी इस लत में लग सकती है। वो किस वे में उनकी रहनुमाई कर रहा है, क्या खुदा की तरफ को लेकर जा रहा है? मैंने इसलिए कहा कि हम सेल्फिश हो गए हैं, हम खुदगर्ज हो गए हैं, हम दोनों तरीके में खुदगर्ज हैं। किस लिहाज से? हम रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी जो है अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं और हमें कोई गर्ज नहीं होता हमारी फैमिली के लिए। यानी हम जो है गलत काम कर रहे हैं, चोरी डकैती या कुछ भी कर रहे हैं, हम बदी बदकारी कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, हम गाली गलौज कर रहे हैं, हम गलत बातें कर रहे हैं, हम गलत मंडली में बैठ रहे हैं, मजलिस में बैठ रहे हैं, हम जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो मंडली में बैठना पसंद करते हैं, जिस्मानी तौर पर भी। और जिस्मानी तौर पर जब आप जो है वो मंडली में बैठेंगे तो फिर ये याद रखिएगा कि आप सेल्फिश हैं, आपको अपनी फैमिली से कोई गर्ज नहीं है। जब आप जो है जिस्मानी तौर पर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, आप जिस्मानी तौर पर अपनी चीजों अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बदी बदकारी भी कर रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जुआ जो खेलते हैं, जो अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए, अपने आप को जो है वो तरक्की और दौलतमंद बनाने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है अपनी फैमिली की। जो बीवी है वो अपने खाने पीने से क्या रहेगी? मजबूर रहेगी, वो खाने पीने से मजबूर रहेगी। और जब वो मजबूर रहेगी तो फिर ये जान लीजिएगा कि उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। औलाद पढ़ने लिखने से बैठ जाएगी, उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन हम सेल्फिश हो गए, हमने अपनी फैमिली को नहीं देखा। लेकिन रूहानी तौर पर भी हम सेल्फिश हैं। रूहानी तौर पर किस लिहाज से सेल्फिश है? रूहानी तौर पर हम कहते हैं मेरा राह जड़ा है खुदा नाल सीधा रहे, मैं चर्च चले जावां, बाकियां नूं भावें घर ही रहना। ये अब हर एक के लिए है। बीवी है तो वो शौहर का नहीं सोच रही, बच्चों का नहीं सोच रही, बच्चे संडे स्कूल नहीं भेजे जा रहे, बच्चे सोए हुए हैं तो सोए रहे, मैं जो हूं मैं मेरी जड़ी ताना है और सीधी रवे खुदा, मेरी तान सीधी रवे खुदा दे नाल। खुद जो बाप है वो भी कहता है मैं काम ते जावा या मैं कोथे जावा, मेरी तान सीधी रवे। ना बाप जो है और ना माँ जो है वो अपने बच्चों को कलाम के मुताबिक पढ़ाती है, ना दुआ सिखाती है, ना कलाम पढ़ाती और ना कलाम में से बातों को बताती है।
तो हमारा खुदा हमारी फैमिली, हम अपनी फैमिली पर किस कदर नजर किए हुए। अगर वो तरबियत नहीं करता तो देखें अयूब ने कैसी तरबियत की है। अयूब ने तरबियत की है, उसने क्या किया है, उसने उनको वो तरगीब दी है कि तुम क्या करो, आपस में मोहब्बत रखो। ये जो बहन भाई हैं आपस में क्या करो जी, मोहब्बत रखो। जो बहन भाई हैं वो आपस में मोहब्बत रखें। और जब वो मोहब्बत रखेंगे तो फिर देखेंगे उन्होंने क्या किया है। उन्होंने क्या किया कि क्या करते थे, एक दिन मुकर्रर करते और फिर अपने बहन भाइयों को बुलाते और एक जगह पर इकट्ठा होकर वो खाना खाते। अब ये मोहब्बत की तरगीब दी गई है। खुदावंद के बंदा ने, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा है, उसकी जिंदगी में खुदा की तरबियत है, उसकी जिंदगी में खुदा मौजूद है। और जब खुदा मौजूद है तो मेरे अजीजों इस बात को याद रखें कि उसने उसी बात और उसी तरबियत को, उसी कलाम को और उसी खुदा को जो है वो बच्चों की जिंदगी में दे दिया है, तरबियत के तौर पर उनके मिरास में कर दिया है। हम आज सोचें कि बाप और माँ होते हुए हमने अपने बच्चों को तरबियत में क्या दिया है, मोबाइल। हमने तरबियत में क्या दिया है, टीवी। हमने तरबियत में क्या दिया है, गालियां। हमने तरबियत में क्या दिया कि बहुत अच्छी गाली करना भी बड़ी बड़ी अच्छी गाल है, ऐ 10 रुपए ले चीज खा जा, तू फलाने ने मार के आया, अच्छा ऐसा हो गया तो बड़ी गल है, तू मार के आया, 50 रुपए ले तो जा चीज खा जा। हम क्या करते हैं कि हम खुदावंद के हुजूर जो है वो इन बातों को नहीं सोचते कि हमने तरबियत में खुदा दिया है या हमने ये बातें अपनी फैमिली को सिखाई हैं। उस खुदा के बंदा ने बातें क्या सिखाई हैं, एक दूसरे के हक को महफूज करना सिखाया है। जब बहन भाई आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत से बैठेंगे तो वो किसी का हक नहीं खाएंगे, वो किसी की हक तलफी नहीं करेंगे, वो किसी के लिए गलत बात नहीं सोचेंगे। तो जब खुदावंद के बंदा ने उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुदा है तब वो इस तरह का सोच रहा है। अगर उसकी जिंदगी में खुदा ना होता तो वो क्या ऐसा सोचता? हाँ जी, क्या सोचता? क्या वो सोचता ऐसा जी? नहीं सोचता ना। तो जब नहीं सोचता, क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि उसकी सोच खुदा के कलाम के मुताबिक है। हमारी सोचें क्या होती, हमारे लिए सिर्फ सेल्फिश। हम सोचते हैं कि सिर्फ जो मैनू मिल गया है, मेरे बच्चियों को मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो क्या करता है, ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि अगर खुदा हमारे दरमियान हो और जब खुदा के कामिल होने के लिए कोशिश करते हैं, रास्तबाजी से जिंदगी जीने में खुदा से डरते हैं और बदी से दूर रहते हैं, तो उनकी औलाद मिलकर मोहब्बत से बैठेगी और एक दूसरे की केयर करेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी बराबरी नहीं करते अपने बच्चों की, हम एक दूसरे के साथ एक जैसा सलूक नहीं करते, एक जैसी तरबियत नहीं करते। हम किसी को ज्यादा प्रेफर देते हैं और किसी को क्या करते हैं, खासकर बेटियों के साथ ये नाइंसाफी होती है। बेटों के साथ चलो क्या ये जी नस्ल बदानी है जी, मेरी नस्ल है, तो क्या वो दूसरी जो है, मेरे अजीजों क्या आप जिस माँ के बेटे हैं, क्या उसकी नस्ल उसकी वजह से आपके बाप की नस्ल नहीं बढ़ी? तो क्या उसको खुराक की जरूरत नहीं है? मेरे अजीजों, इस बेटी की वजह से आने वाली मसीही नस्ल पैदा होगी। हालेलुया। तो हम जब हम अपने बच्चों में ऐसी तरबियत नहीं करते तो ये याद जान लीजिएगा कि हमारी फैमिली खुदा से दूर रहेगी, फिर हमारा ही खुदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की हक को महफूज करना सीखेंगे, वो ये जानेंगे कि ये भी मेरे जितना ही है, बराबर इक्वलिटी आएगी। फिर लिखा है रिश्तों को डेवलप होने के तरक्की करेंगे, वो रिश्ते और ज्यादा तरक्की और सरफराजी पाएंगे, वो एक दूसरे की इज्जत करना सीखेंगे। फिर लिखा है कि अपने बहन भाइयों की किरदार कशी नहीं करेंगे।
यानी ये नहीं है कि भाई मेरे भरा दे कोल गड्डी है, मेरे भरा दे कोल बड़ा अच्छा एक घर है, लेकिन मेरा जो दूसरा भाई है उसके पास कुछ नहीं है, मैं उसको जरा थोड़ा सा छांट के रखा, मैं उसको अपने लेवल पे ना लेके आऊं, मैं उसको अपने बराबर ना समझूं। लेकिन यहाँ पर वो एक दिन मुकर्रर करते हैं, वो बहनों को भी बराबर समझते हैं और भाइयों को भी बराबर समझते हैं। वो कभी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उसके वालिद ने, उसके जो उसका घर का रहनुमा है, उसने उनको इक्वालिटी की तालीम दी है। और ये तमाम की तालीम जो है वो कहाँ से हमें मिलती है? ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम के वजह से मिलती है। फिलिपियों दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो, यक दिल रहो। क्या जी? यक दिल रहो। जब आप या मैं बच्चों के दरमियान मुकाबलेबाजी करेंगे, मैं और आपके जो है वो बच्चों के जहनों में इस तरह की बातें, हकीर करने वाली बातें, दूसरे को हकीर जानने वाली बातें, अपने बहन भाइयों को हकीर जानने वाली बातें, उसकी हैसियत और उसकी किरदार कशी करेंगे, तो मेरे अजीजों आने वाली मसीही कलीसिया और आने वाले मसीही बच्चे और मसीही फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल जो है वो हमारा खतरे में होगा। हमारे मसीही बच्चे आपस में मिलकर बैठ नहीं सकेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं रख सकेंगे। सबसे बढ़कर देखें कि आज हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं है, बड़ों के दरमियान मोहब्बत नहीं है। खुदा उनके कलाम में लिखा है आखिरी वक्त में बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में तो खुदा है, हम तो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हर बंदे ने, हर बुजुर्ग और हर भाई ने, बहन ने अपना मोटो सीधा किया हुआ। हमें औलाद से कोई गर्ज नहीं है, हमें औलाद से कोई गर्ज नहीं है। औलाद जब लेनी होती है तो हमारा ईमान ये होता है, हम वादे करते हैं खुदावन मैं तेरे बेटे को तू मुझे दे तो मैं ये करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं इस तरह करूंगा, मैं तेरे हजूर ये करूंगा। और जब बेटा मिल जाता है या बेटी मिल जाती है या औलाद मिल जाती है तो उस मोहब्बत में जो खुदा के साथ होती है, उस जनाब परहेजगारी में, उस जनाब दुआओं में, उस जनाब रोजे में जो है वो फर्क आना शुरू हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं कि जी मिल तो गई है, अब खुदा को कौन पूछे। अब जब हमने खुदा से ले लिया तो हम अगर आगे बात करें तो हम सिर्फ उसके पालने तक, बड़े होने तक है, तो हमारे जहन में खुदा होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता जी? खुदा नहीं होता। वो कैसे? हम संडे स्कूल के लिए सोचते ही नहीं है। कभी किन कौन सी बहनें और कौन से भाई हैं, माँ बाप हैं जो हफ्ते के दिन ये सोच लेते हैं कि अतवार आ रहा है, अपने बच्चों को जल्दी उठाना है और संडे स्कूल भेजना है। सोचते हैं जी, जो सोचते हैं खुदावंद उनको बरकत दे, लेकिन सेल्फिश ना हो, अपनी तन जो है वो खुदा के साथ स्थिति ना रखें, अपनी जनाब तन स्थिति रखिए खुदा के नाम। तो ये जान लीजिएगा कि इस बात को कि यहाँ पर खुदावंद का बंदा जो है वो हमारे लिए एक कामिल नमूना है। वो क्या है जी? कामिल नमूना है। और जब वो कामिल नमूना है तो मेरे अजीजों इस बात को याद रखिएगा कि वो अपनी औलाद को कैसे डेवलप कर रहा है, वो कैसे अपनी औलाद को अच्छे तरीके से जो है वो आगे लेकर चल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी जो है वो तमाम बातों में जो है तरक्की हो रही है। तो यहाँ पर देखें कि वो सबको इक्वल करता है। यहाँ पर बात की गई है, लिखा है यकसा मोहब्बत रखो। क्या जी? क्या करो जी? हाँ जी, यकसा मोहब्बत रखो। अपनी फैमिली में भी यकसा मोहब्बत रखो। और फैमिली सिर्फ ये नहीं है हमारी, यही है अपने साथ वाले बहन भाई। हम क्या है जी मसीह में? हाँ जी, मसीह में क्या है? हम खुदा को क्या कहते हैं? खुदा को भाई कहने क्या कहते हैं जी? बाप कहते हैं।
यीशु को क्या कहते हैं? तो फिर हम क्या हो गए? पूरी खुदा की क्या है जी? पूरी खुदा हमारा खुदा और हमारी सिर्फ अपनी फैमिली तक महदूद ना रहो, दूसरे घर में भी जो है वो यकसा मोहब्बत रखे। ये नहीं है कि मेरे घर दे विच सारा कुछ होवे तो दूसरे घर दे विच भी कुछ ना होवे तो उसे हकीर जानी है, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करिए, छोटी छोटी बात पर टीज करें, हम रुपए पैसे को लेन देन पर टीज करें, हम उसके गिरेबान को हाथ डाल लें, हम उसके किरदार को हाथ डाल लें, हम उसके बच्चों के लिए अच्छा ना सोचें, हम उस घराने के लिए अच्छा ना सोचें। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है यकसा मोहब्बत रखो। यहाँ पर फिर लिखा है एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से क्या लिखा है? तफिरके और बेजा फख्र के बायस, यहाँ पर क्या है जी? एक ख्याल रहो, एक ही ख्याल रखो, बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से। हाँ जी, है जी साढ़े जी गल हम बेहतर समझते माड़ा जिन्ना साडा कारोबार उते आया नहीं, असी थोड़े जे डेवलप होए नहीं, हम बाहर गए नहीं, तो हम दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को जो है वो इस बात में समझना शुरू कर देते हैं कि लो जी ये तो मेरी हैसियत तक आई ना। लेकिन ये किरदार और ये तालीम और तरबियत किसकी है, इसको हम देखेंगे। अगर हम देखें इसी में हर एक अपने ही अहवाल पर नजर पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी क्या करे? नजर करे। असी नजर नहीं करते, असी नजर रखी होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखा है एक दूसरे के अहवाल पर नजर करो, यानी उसकी बेहतरी के लिए नजर करनी है, उसकी बेहतरी के लिए, ना कि उसके ऊपर नजर रखनी है। ये की खांदा है, ये क्या करता है, इसके बच्चों पे नजर रखो, इसके ऊपर इसकी एक्टिविटी पे नजर रखो। एक कोई करके बहावे सही कोई काम, मैं फिर इन्हों दसूं करके दिखाए कोई काम। लिखा है आखिरी बार, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। जो कोई शख्स या वालिद या वालदा अपनी जिंदगी को खुदा में गुजारता है, वो जो है अपने बच्चों में वैसा मिजाज डेवलप करेगा जो यीशु मसीह का है। तो जिसने अपनी जिंदगी गुजारी नहीं है खुदा के साथ, वो अपने बच्चों को किस कदर जो है वो मसीह का मिजाज सिखा सकता है। इसके लिए वो जोड़ा रूहानी होना चाहिए, इसके लिए जोड़ा रूहानी। हाँ जी, जिन्ने जोड़े बैठे जरा हाथ खड़ा करो, हम ब्याह करियां कुड़ियां ते शादीशुदा बैठे हैं ना, तो जब औलाद पैदा होती है तो उसके लिए मियाँ और बीवी दोनों को रूहानी होने की जरूरत है, क्योंकि फैमिली तो फिर ही बनती है। अब यहाँ पर देखें कि अयूब की वाइफ जो है वो कैसा रवैया रखती है जी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, अयूब की किताब में से हम पढ़ेंगे। पहला बाब नामी आयत है, बुलंद आवाज से को पढ़े जी, जल्दी से पढ़ेंगे फिर हम जल्दी से खत्म करेंगे। हाँ जी। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ। यहाँ पर क्या लिखा है कि उसके घराने के चुगे। जब वो शख्स खुदा के साथ चलता है तो उसका घराना भी कहाँ पर है? खुदा की पनाह में है, खुदा की रहनुमाई में है, खुदा की पनाह में जिंदगी बसर कर रहा है। और उसके चुगिर्द क्या है जी? खुदा की बाड़ लगी हुई है। क्या लगी हुई है जी? खुदा की बाड़ लगी हुई है। लेकिन ये तब होगा जब मियाँ और बीवी दोनों खुदा परस्त हों। लेकिन
मसला तब होता है, औलाद तब बर्बाद होती है, या औलाद की जिंदगी में तब खामियां आ जाती हैं जब दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो रूहानी नहीं होता। हम मर्द और औरत, लड़का और लड़की जब अपने तौर पर खुदा से हटकर अपने लिए जीवन साथी ढूंढने की कोशिश में होते हैं, तो फिर ये जान लें कि आप खुदा से अलग होकर अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। खुदावंद कहता है कि जो कवारे हैं, जो बिन ब्याहे हैं, वो बीवी की तलाश ना करें, क्योंकि खुदावंद ने आदम के पसलियों में से एक पसली लेकर उसके लिए पहले से बीवी तैयार कर रखी है। तो हम जब अपने तौर पर, फिर सेल्फिश आ गया ना काम, खुदगर्जी आ गई जी, खुदगर्जी के तौर पर जब चुनते हैं, तो मेरे अजीजों एक बात याद रखिएगा, वो शख्स जो खुदा के साथ जिंदगी बसर कर रहा है वो उसकी बर्बादी का बायस भी बन सकती है। कैसे, इस बात को ज़हन में रखिएगा। दूसरा बाब और उसकी नामी है। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? इतना बड़ा सवाल जो है उसकी बीवी ने उसके सामने रख दिया। बाज़ औक़ात ये दो पहलुओं को जाहिर करती है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे। तो दो पहलुओं में कैसे, एक तो हालात के डर से उसका ईमान कमजोर हो गया और उसके हालात इर्द गिर्द जो थे वो बड़े बुरे हो गए, तो उसकी वजह से उसका ईमान जो है वो कमजोर हो गया और उसने खुदा के बंदा के ऊपर ये सवाल कर दिया, क्या अब भी तू खुदा की रास्तबाजी पर कायम रहेगा? क्या तू अब भी खुदा के साथ चलता रहेगा? अब ये वो हालात की वजह से हुआ, लेकिन जब हम दो गैर कौम में से या कोई और गैर ईमानदार जो एक बीवी है या कोई मसीही बहन जो होती है, यानी मसीह किरदार के मुताबिक, कलाम के मुताबिक वो भी जो है लड़की जो ईमानदार नहीं है उसको अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो फिर क्या होता है, वो भी हमारी जो जिंदगी है उसमें सवाल कायम कर देती है कि क्या तू अब भी खुदा की जो है रास्तबाजी पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। क्या कोई बीवी ऐसे कह सकती कि जी खुदा दी अहानत कर दे मर जा? कह सकती है जी? तो कहीं कह भी देनी है। जो गैर ईमानदार है, जो गैर कौम से हैं, हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो चुका है, चाहे वो बीवी है चाहे वो शौहर है। ये बेटियां और बेटे बात को सुने और कान खोल कर सुने, इस बात को याद रखिएगा। पहला करंथियों 9वां बाब 5वीं आयत, क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरे, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते? यानी मसीही बहन का मतलब ये है कि जो मसीह की तालीम पर कायम रहती है, जो मसीह की तालीम पर अपने किरदार को बनाए रखती है, मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर करती है, जिसकी जिंदगी में खुदा होता है, वो भी खुदा से डरती, कामिल और बदी से दूर रहती और रास्तबाजी की जिंदगी जो बसर करती है। ऐसी अगर बीवी होगी या ऐसा मर्द होगा तो फिर वो फैमिली कायम रहेगी, वो बच्चे मसीह के मिजाज पर डेवलप होंगे। हमारी मसीही बरादरी जो है वो मोहब्बत में, एक दूसरे की इज्जत करने में, एक दूसरे को डेवलप करने में, एक दूसरे की तरक्की और सरफराजी में और एक दूसरे को बगैर हकीर जाने उनकी मदद और सहायता करे, उनके साथ मिलकर चलेगी। लेकिन जब एक फैमिली खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, बीवी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, अगर शौहर खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, अगर वो ईमानदार नहीं, मैं ये नहीं कहता, ऐसी शादियां भी होती हैं, लेकिन ये जान लीजिएगा कि मसीह में जो है उसी से सिर्फ शादी की जाए, जो खुदावंद में है सिर्फ उसी में से शादी की जाए। जो मसीही बहन, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या हमें हक नहीं है कि मसीही बहन को, यानी हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाना
चाहिए, किसी गैर कौम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि मसीहियों के अंदर ही रहना चाहिए। हमारे रिश्ते, हमारे नाते मसीहियों के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर रसूल ये बयान करते हैं, अगर जो बेईमान है, जो गैर कौम में शादी करते हैं, ये जान लीजिएगा वो ये कह सकती है कि खुदा की तकफीर कर और मर जा। क्योंकि सुलेमान बादशाह ने भी बहुत सारी गैर कौम में से शादियां की और फिर लिखा है उसकी बीवियों ने उसके दिल को क्या कर दिया, फेर दिया। तो उसकी दिल को क्या कर दिया जी, फेर दिया। दूसरा क्रंथियों 6 बाब 34 आयत, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बालेम की साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। फिर आपके बच्चे या हमारे बच्चे मसीह के मिजाज की तरह नहीं होंगे, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और ये फैमिली किसकी तशबीहन है? हाँ जी, यहाँ पर लेकर खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। क्या जी, जिंदा खुदा का। कुछ हम देखें, एक जिंदा खुदा का मकदस और एक आपके खुदा को मानते नहीं, जो पाकरू को मानते नहीं, जो बेटे को मानते नहीं, क्या उसके बाद साथ बराबरी हो सकती है? फैमिली आपकी बर्बाद हो सकती है, ये जान लीजिएगा। आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप आखिरी आयाम में जो है वो खुदा को क्या जवाब देंगे? चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा। खुदा तो मसीहों के अंदर बसता है, खुदा तो मसीहों की फैमिलियों में बसता है, उनके बच्चों में बसता है। उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदावंद होऊंगा और खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, ये बात को जरा गौर से सुन लीजिए, खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां। जो लोग खुदा के जरिया से अपनी फैमिली बनाने में गौर नहीं करते, अपना जोड़ा बनाने में गौर नहीं करते, ये जान लें कि वो खुदा बाप नहीं कह सकते, वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। और जो बेटे और बेटियां नहीं बन सकते तो फिर आप यीशु को भाई नहीं कह सकते, और यीशु को भाई नहीं कहा तो आप कफारे से बाहर हैं। जब कफारे से बाहर हैं तो आपका कफारा और निजात नहीं हुई, आप गैर कौम में हैं, आपके लिए खुदा नहीं है। जब हम बात करते हैं एक अच्छी बीवी के लिए, तो मिसाल 31वां बाब 30वीं आयत में लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। उसने क्या किया है? आपको आपके मजहब से दूर लेगी, आपको आपके बाप से दूर लेगी, आपके भाई से दूर लेगी जो यीशु मसीह है। यहाँ पर लिखा है कि आ हुस्न धोखा, आ जिहड़े भरा जिहड़े ने ते जिहड़ियां भैणां ने, ये समझ लेने खुदा दे कलाम च लिखा हुस्न धोखा है। आ जिहड़ा डुੱਲ जाने आ ना असीं, आ औखी गल करने का शायद किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन कलाम च लिखा है ये ढल जाने वाली चीज़ है, ये धोखा है। मैं सोहण पुणे तो की रहना जिहदे च खुदा को नहीं। हालेलुया। सोहण पुणे तो की करना जिहदे च खुदा नहीं है। लिखा है खुदावंद के कलाम में, ये बात गौर से सुनिएगा कि बदतमीज औरत जिसकी जुबान दुरुस्त नहीं है, उसमें हुस्न ऐसे है जैसे सूरनी की नाक में नथ है। कलाम में लिखा हुआ, बदतमीज औरत
जिसकी जुबान दुरुस्त नहीं, जिसका किरदार दुरुस्त नहीं, जिसका अंदर दुरुस्त नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, वो ये जान ले कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो जो है उसके अंदर हुस्न जो है वो ऐसे है जैसे सूरनी के नाक में नथ है। लिखा है झगड़ालू औरत के साथ रहने से छत के एक कोने में रहना बेहतर है। तो हुस्न धोखा है, सिर्फ सौन पीछे ना ढुल जाया कर। ये ना होवे कि सौन पीछे जाओ तो फिर असीं रोनियां या रोंदे आ, ओए किहड़े पासे आ गए हां। भरावां दी भी गल करदे आ, ज्यादा ओही जुड़दे, भैणां भी है और खुदा दा नाम जे भी ना एक दूसरे को देख के सोशल मीडिया ते भी कर लिया करो, फॉलो कर लिया करो, फिल्टर लगे होंगे, फिल्टर लगे होंगे, ये गल याद रखो। तो ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर जो औरत खुदा से डरती है उसके अंदर हुस्न है। हालेलुया। जो खुदा से डरती है उसके अंदर ये हुस्न पाया जाता है। ये जान लीजिएगा खुदावंद के कलाम एक में लिखा है उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, उसे मुनाफा की कमी ना होगी। ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएं। हाँ जी, बीवियां, खावंद, अगर आपके साथ मसीही अगर कोई बहन शादी हो जाती है, उसकी लड़की की शादी हो जाती है या लड़की के साथ मर्द की शादी जो हो जाती है, तो अपना किरदार खुदा के साथ दुरुस्त रखें, आपको देखकर वो भी राह रास्त पर आ जाएगा। हालेलुया। तो दोनों ने जनाब कहते हैं तू नहीं ठीक, दोनों कहना तू नहीं ठीक, दोनों एक को दूसरे के नाल लगे ऐसा ही जी। अपने किरदार को दुरुस्त रखे। आपकी वजह से जो शख्स जो खुदावंद के साथ नहीं चलता वो आपके देख कर चलना शुरू कर देगा। तो जे कोई किसी होर दे नाल गैर जनाब ऐसे हम ईमानदार दे नाल जुड़ गया तो फिर यही गल उथे भी लागू हो जाएगी। फिर क्या होगा कि हम उसको देख कर जो है कैसी साड़ी मोहब्बत है ते कैसी साड़ी वफादारी है कि किसी दे पीछे लग के असी अपने खुदा नूं छड़ देंगे, मजहब तब्दील कर लेते। ये बात जान लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि हमारा किरदार जो है, इसी तरह हमारा किरदार अगर दुरुस्त है तो मेरे अजीजों हम तब्दील कर सकते हैं अपने साथी को। और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सरगूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पुशीदा इंसानियत, इल्म और मजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। भरा भी ये गल सुनना, जो लम्बे बाल रख के ते पोनियां पा के फिरते हैं ना, ये काम भैणां दा सी, ये काम किहदा सी? भैणां दा सी। ते जिहड़े कड़े पा के फिरते हैं ये भी काम किहनां दा सी? भैणां दा सी। बाहरों सब्जी लियाउणा किहदा काम सी? हाँ जी, चलो ये रिलैक्स कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भैणां वेख फूक के रह होंदियां कोई जनाब, जिहड़ी नज़र बंदियां दी नहीं पैंदी वो भैणां दी पै जांदी है। इस तरह ही है, इस तरह ही है ना। जे कहने बंदा भावें लै भी आवे ना तो नहीं कहना पक्कियां तुसीं लै ध्यानू तो लियाउणी नहीं आती, मैं लैके वहावांगी ध्यानू। तो फिर ये बात थोड़ी सी हो जाती है कि वाकई में ही जो है इस तरह का काम, लेकिन जो मर्द हजरात का काम है वो भैणां ने अजकल फड़िया, तो जो भैणां का काम असी वो मर्द हजरात ने फड़िया, यही बात है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि ऐसी चीज़ें जो खुदावंद के नज़दीक तारीफ के लायक हैं और बड़ी कदर है, वो आज हमने सीखी हैं। तो मेरे अजीजों, आज की फैमिली के बारे में अगर हम सेल्फिश हैं तो हम अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर हम खुदा परस्त हैं,
खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो मेरे अजीज़ों ज़रूर है कि हम अपनी फैमिली के बारे में भी सोचेंगे और अपनी बीवी सिलेक्शन करने के लिए, अपना शोहर सिलेक्ट करने के लिए इस मयार को लेंगे। हालेलुया। इस मयार को लेंगे, कोई और मयार हमारे लिए लायक नहीं है, कोई और खुदा हमारे लायक नहीं है। सिर्फ बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है वो एक मसीही फैमिली का खुदा है। हालेलुया। हमारी फैमिली का खुदा सिर्फ यहोवा पाक खुदा है जो हमारा मसीह यीशु में आसमानी बाप है। तब पाक रूह हमारी फैमिली में जुम्बश करेगा और जब हमारे अंदर इस तरह की बातें होंगी, हम दुआ करेंगे, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करेंगे, हम बदी से दूर रहेंगे, हमारा किरदार रास्तबाजी वाला होगा, हम कामलियत खुदा के लिए जीने की कोशिश करेंगे, तो फिर जरूर है कि हमारी औलाद भी एक जगह पर बैठकर एक दूसरे की हैसियत को खराब करने या किरदार कशी नहीं करेगी, बल्कि आने वाला माशरा बड़ी खूबसूरती से एक मोहब्बत भरा माशरा होगा। और मैं फिर से कहूंगा, खुदारा जिसको आप देखते हैं कि ये शख्स या बेटा या बेटी या फैमिली या कोई भी शख्स है, आपके बच्चों में, आपके घराने में, आपकी जिंदगी में कोई भी गलत जहर घोलने की कोशिश करता है, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो दोस्त होता है, इसका तीसरा हिस्सा कौन सा है? हमारा खुदा और हमारे दोस्त, इसको तीसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब कोई इस तरह का शख्स आपकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है, उसको बिठाकर उसको कहें, खुदारा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी जियो और हमें भी जीने दो। हमारे घर में, हमारी फैमिली में जो है वो नफाक डालने की कोशिश ना करो, तफरीके डालने की कोशिश ना करो, अपना मजाज वैसा रखो जैसा मसीह यीशु का। हालेलुया। तो अपने आप को अवेयर करें, सेल्फिश होना छोड़ दें, अपनी जो है वो बातों को सिर्फ खुदा के साथ सीधा ना करें, बल्कि अपनी फैमिली को चुनने में बाइबल मुकद्दस को मियार बनाएं। मसीही बहन जो है, जो ईमानदार है, जो कलाम के मुताबिक अपने आप को तारीफ के लायक बनाई, खुदा से डरती और ईमानदार है, दुआ गो है, अपने आप को दुरुस्त करें और आपका चुनाव इसके मुताबिक हो। और खुदावन यहोवा पाक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के मुताबिक जो है वो चुनाव हो, और बेटी और बेटा अपने किरदार को दुरुस्त करे ताकि आने वाली नस्ल जो है वो खुदा परस्त नस्ल हो। हालेलुया। खुदावन आपको इस तमाम बातों के वसीले से कसरत से बरकत दे। यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आज हम अपनी फैमिलियों पर खुदा को इख्तियार देंगे कि खुदा हमारी फैमिलियों को चुनने में मदद करे, और जब फैमिली बन जाती है तो हमारे दरमियान बसे और हमें वैसी औलाद बख्शे जैसी यहाँ पर एक दूसरे का ख्याल करने वाली है। मैं फिर कहूँगा, अपने अंदर से ऐसे कांटों को निकालिएगा, अपने अंदर से, अपने माशरे से, अपनी फैमिलियों और तमाम अपने हमसायों के जिंदगियों से और माशरे से ऐसे लोगों को जो अपने साथ भी धोखा करते हैं और आपके साथ भी फरेब देते हैं, कलाम के मुताबिक फैमिलियों को बर्बाद करते हैं, आने वाली नस्लों को बर्बाद करते हैं, अपनी फैमिली को खुदा के हाथों में दें। उनको समझाएं कि तुम भी खुदा के वास्ते खुदा के लिए चलो और हमें भी मोहब्बत से जीने दो, क्योंकि खुदावंद यीशु की ये तालीम नहीं है, हमारे खुदा की ये तालीम नहीं है। तो बहनों, बेटियों और माँ बाप तमाम अपनी अपने ऊपर सोचें और फैमिलियाँ अपने अंदर खुदा को रखें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दें। आइए अपने